because today there's a lot to be done. So here goes the understanding of the generation gap. The speaker is Sai. So Sai, can you just take over? Please take over. Yes, Buaji, thank you very much. Good evening, everyone. Okay. Let's start today's session. Yesterday we just covered what is generation gap. Okay. We tried to understand it. We tried to relate to it. All of us, all of you were so good yesterday by giving your own thoughts. You were putting things in the chat box, which really made us very happy because we knew that all of you all were involved in what we were talking. Today is a very important day because we are going to talk today about reasons of this generation gap. So the objective today is that you understand the reasons, and then while you're listening and understanding the reasons, you also try and understand which out of these reasons are the reasons why you are facing this generation gap in your life. Okay, you have to identify today which out of these are the reasons you are facing generation gap in your life. So that is why Buaji told you all that you should listen carefully today. Okay. So before we start, we will definitely go in detail of what we covered yesterday, more in detail with some examples. But I want all of you all to look at this video. This video talks about control that we want on each other in our lives, and that causes the major issue. All of you all, please watch and listen to the video, read the subtitles. Yes. So any one of you who can tell me what did you see in the video? You can just unmute and talk. Any one of you can unmute. Excuse me, madam. Yes. Madam, I want to talk. That lady, is practicing her daily daily process of making how to walk, how to dress up. Yes, how to talk. And how yes. to look so nice. The lady is a mother-in-law. In the community, how to talk. Yes. Mother-in-law. Yeah. And I think she is competing with her daughter-in-law.
it seems, I mean, it might be wrong also. Is it that she wants to look better than her daughter-in-law? Yes, sir, absolutely right. So here in this video, we could see how one generation was trying to dominate, or trying to control other generation. This is what we do. It's not only always a mother-in-law dominating a daughter-in-law. It can be the other ways also. दूसरी तरफ से भी हो सकता है. ठीक है. तो हमको है ना, सबको दूसरों की लाइफ पे बहुत सारा कंट्रोल अच्छा लगता है, हमारी खुद की भी लाइफ पे और दूसरों की लाइफ पे भी, और उसके वजह से बहुत सारे बखेड़े खड़े हो जाते हैं. ये जो जनरेशन गैप है वो भी उसी की वजह से हमें काफी सारा दिखाई देता है. लेट्स स्टार्ट इसका विद, मतलब है ये रीस है, कंपैरिजन, रीस. She is यस, comparing herself to others. रीस है. तो करेक्ट, रीस भी एक, it's not a good vice. It यस, is a vice. It's कंपैरिजन, not a good habit. या तौर तरीके सिर्फ हम ही को पता है, ऐसे लगता है हमें, इसीलिए हम दूसरों पे थोप देते हैं हमारे आइडियाज, हमारी. तो अहंकार हो जाता है. यस, यस, करेक्ट. अहंकार हो चलिए. जाता है ना फिर. सो वील मूव अहेड नाउ. और कल हमने कुछ रीजंस देखे थे, उसमें ही ये था रैपिड चेंज इन कल्चर. ओके, सो काफी सारे इंटरकास्ट मैरिजेस, अलग अलग जगहों पे, क्योंकि लोग रह रहे हैं, जाके नौकरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अलग जगहों पे, तो कल्चर में चेंज है. जिस जगह पे जा रहे हैं वही का कल्चर ज्यादा फॉलो हो रहा है. फिर हम देख रहे हैं कि आदमी औरत के बीच का जो जेंडर रोल्स है, उन जेंडर रोल्स में इक्वालिटी देख रहे हैं. धीरे धीरे दोनों को ही सिमिलर हक मिलने लग गए हैं. उसके अलावा एक नया चेंज हमने देखा है. ओके, जैसे बायोलॉजिकली जेंडर मेल फीमेल और इंटरसेक्स होता है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि काफी ओपनली LGBTQAI+ के बारे में बोला जाता है. ओके, तो ये पुराने वक्त में भी था, लेकिन अभी जेंडर ओरिएंटेशन बहुत ओपनली बोला जा रहा है. आपने देखा होगा रिसेंटली गौरी सावंत पे एक मूवी आई है ताली, इसमें सुष्मिता सेन ने काम किया है. उसके पहले भी काफी सारे ऐसे मूवीज आए थे. ओके, तो ये एक बड़ा चेंज है सोसाइटी के लिए, और उसके वजह से जनरेशन गैप काफी आ रहा है. तो कुछ जनरेशन के लोग इसे अप्रूव कर रहे हैं, और कुछ जनरेशन के लोग इसे अप्रूव नहीं कर रहे. रिचुअल्स रियल टू रील हो गया है. ओके, फैमिली स्ट्रक्चर, एक्सटेंडेड फैमिली, काफी सारी चीजें जैसे लिविंग रिलेशनशिप, बहुत सारा हमने इसमें से कल किया है. ओके, इनर जर्नी पे ज्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं अभी. धीरे धीरे एक्चुअली लोगों. मैडम, yes, I want to yes, speak about one. बोलिए. Is it not that ये जनरेशन गैप हम्म, दादी या नानी के नुस्खे जो हमको पहले मिलते थे वो आज हाँ, नहीं दिखने को मिलते. तो दादी हमको करेक्ट. जो, नानी जो हमको टिप्स देती थी, कैसे ब्रश करना, दातन, नीम का दातन इस्तेमाल करना, हाँ, हाँ, फिर हाँ, गागल करना, हम्म, और कान दुखता हो तो सरसों के तेल में एक लहसुन उबाल के वही हम्म, कान में डालना. करेक्ट, और करेक्ट. ऐसे ही काफी है, अगर बोलूं तो ये टाइम नहीं मिलेगा. तो यस, उसमें भी आप यस. कुछ फाइंड आउट करके बोलो हमको. और हम हर एक में एवरी मंथ वी वर गिवन व्हाट यू कॉल एज वो पेट साफ होने के लिए, वो शब्द भूल गया मैं, ताकि वो जो अमीबा का जो साइकिल होता था अमीबा का, वो खत्म श्योर, हो श्योर. जाएगा. ये स्कूल में भी सारी देते थे. चीजें, हाँ, करेक्ट, ये सारी चीजें हम बोल ही रहे हैं. हम ये बोल रहे हैं ये कि कुछ अब भी नहीं जनरेशन दिखते. में हर
Sai, unmute yourself. Sai, just unmute yourself, please. And we can take the questions at the end. Sai, I would like if you can Yes. just give your knowledge and wisdom to entire public. Yes. Thank you So, so much. हम कोई भी जनरेशन के तरफ से बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि हर एक जनरेशन में कुछ अच्छी चीजें हैं, तो हम वो आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी चीजें अच्छी है और कौन सी हमें कंटिन्यू करनी है और कौन सी हमें कंटिन्यू नहीं करनी है, वो समझने की हम कोशिश कर रहे हैं रीजंस की वजह से. ओके, सो वी वर ऑन इनर जर्नी. ज्यादातर लोग अभी बाहर की चीजों में कोई भी चीजें, बाहर की कोई चीजों में चेंजेस नहीं करते हुए अपने आप में बहुत सारे चेंजेस, पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ये आपको दिखाई दे रहा है. ये भी काफी सारे रीजंस हैं. सुपरस्टिशंस में बहुत कम लोग अभी मान रहे सुपरस्टिशंस को, और उसके वजह से काफी सारे लोग साइंटिफिक रीजनिंग की तरफ मुड़ रहे हैं. बच्चे सवाल कर रहे हैं कि क्यों एक स्पेसिफिक रिचुअल हमें करना है. ओके, फिर लॉजिक की तरफ ज्यादा हम जा रहे हैं. ऑफ कोर्स मोबिलिटी ऑफ सोसाइटी के बारे में भी हमने बात किया, कैसे वर्चुअली हमारी लाइफ ज्यादा है, अभी फिजिकल लाइफ कम हो गई है और वर्चुअल लाइफ ज्यादा हो गई है. जैसे कॉलिंग पीपल, ऑनलाइन बातें करना, डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी चीजें. ओके, पैसे भी हम लोग ज्यादा कर ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करने लग गए हैं अभी थ्रू QR कोड्स. इससे भी काफी सारा जनरेशन गैप है, क्योंकि कुछ जनरेशन्स को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, ना ही वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जनरेशन्स बहुत ज्यादा एक्टिव है. बट जरूरी नहीं है कि पुराना या नया जनरेशन. आप देखोगे कि कुछ पीपल हु आर आर पेरेंट्स ऑल्सो, बहुत सारे लोग अगर जो सीख रहे हैं वो सीख के इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं. ओके, सो इस तरीके की चीजें आपको दिखाई दे रही है. ज्यादा करके मटीरियलिस्टिक लाइफ इज व्हाट वी आर लिविंग. ओके, और अभी क्योंकि आप देख रहे हो कि सभी लोग बहुत सारे इंडिपेंडेंस है, मॉनेटरीली इंडिपेंडेंट है, मेंटली इंडिपेंडेंट है काफी सारे लोग. ओके, क्योंकि दैट इज व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. उसके वजह से एक दूसरे को माफ करना, एक दूसरे के रिलेशनशिप पे काम करना, ये सारा कुछ कम हो गया है. जो कुछ जनरेशन पहले काफी कुछ होता था, छोटी छोटी बातों पे डिवोर्सेस या ऐसी चीजें, सेपरेशन, ये चीजें नहीं होती थी. okay? काफी सारे लोग जनरेशन में एकदम डिटैच्ड रह रहे हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड है और उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, सो हम देख रहे हैं कि बच्चों पे बहुत सारी चीजें हम थोप रहे हैं. एज पेरेंट्स बहुत सारी चीजें हम बच्चों पे थोपते रहते हैं. आई वॉन्ट टू गो लिटिल मोर डीपर इन टू द अपब्रिंगिंग, पेरेंटिंग जो हम कर रहे हैं. ओके, इसमें थोड़ा सा डीप में जाना चाहूंगी, और ठीक से सुनिए जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ. एज स्कूल काउंसलर मैं काफी सारे बच्चों से मिलती हूँ, मैं काफी सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं काफी सारे ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं टीचर्स की जो कंप्लेंट्स है वो भी सुनती हूँ. ओके, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो एक बच्चे के इर्द गिर्द काफी सारे प्रॉब्लम्स, आई थिंक अराउंड 60-70% प्रॉब्लम्स मैं खुद देख चुकी हूँ, अलग अलग किस्म की. और उसके वजह से मुझे ऐसे लगता है कि जनरेशन गैप का एक मेजर रीजन किस तरीके की पेरेंटिंग हुई है बच्चे के लिए, किस तरीके के पेरेंट्स हैं हम, और हम क्या एटमॉस्फेयर, क्या एक्सपोजर बच्चों को दे रहे हैं, बहुत जरूरी है. ठीक से सुनिए. कुछ पेरेंट्स मैंने देखे हैं बहुत ज्यादा नर्चरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करना चाहते हैं बच्चों को, कंटिन्यूसली बच्चों के साथ रहते हैं. ओके, कंटिन्यूसली बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चों को जो चीजें चाहिए वो इजीली प्रोवाइड हो जाती है. अगर बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो हम इसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोलते हैं.
यू नो नो हेलीकॉप्टर कैसे होता है? हेलीकॉप्टर क्या करता है, जब कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे यू नो कुछ भी बड़ी 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 कैलामिटी आती है, तो क्या होता है, हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है और सारी चीजें जो जरूरी है लोगों के लिए वो नीचे फेंकता है, और लोग उसे इकट्ठा करते हैं और अपनी जो भी जरूरतें है वो पूरी करते हैं। सो बिल्कुल उसी तरीके की पेरेंटिंग बहुत सारी आप देख सकते हो। तो आपको क्या लगता है कि इस किस्म के अगर पेरेंट्स होंगे तो बच्चे कैसे होंगे? चैट बॉक्स में लिखिए। तो ये एक किस्म की पेरेंटिंग है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग ज्यादा आप देखते हो तो किस तरीके के बच्चे उस घर में होंगे? वेरी गुड, डिपेंडेंट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। आप इस पे लिखते रहिए ताकि हम नेक्स्ट टाइप की पेरेंटिंग देखें। नेक्स्ट टाइप की पेरेंटिंग है कि जहाँ पे पेरेंट्स एकदम हिटलर जैसे होते हैं। ओके, अगर पेरेंट ने कहा कि रेड टी शर्ट पहनना है तो रेड ही टी शर्ट पहनेगा बच्चा, और कोई दूसरा टी शर्ट नहीं पहनेगा। ओके, या फिर पेरेंट्स बोलेंगे कि इतना पोर्शन आज कंप्लीट करना है तो इतना पोर्शन तो कंप्लीट करेगा ही। यस, क्रिटिकल पेरेंट्स है ये। इनके यहाँ पे कैसे बच्चे होंगे? ओके, सो फर्स्ट तरीके के जो पेरेंट थे, जो ज्यादा नर्चरिंग है, जिसे हम हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहते हैं, वहां पे ज्यादा डिपेंडेंट बच्चे होंगे जो अपनी अपनी तरफ से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, कोई चेंजेस नहीं कर पाते हैं, हमेशा इंस्ट्रक्शंस की जरूरत पड़ती है उनको। ओके, और जो क्रिटिकल पेरेंट्स के बच्चे हैं वो कैसे बच्चे? आप देखोगे कि उस किस्म के बच्चे जो होते हैं, वहां पे दो किस्म के बच्चे दिखाई देंगे उस घर में। आप एक तो ऐसे जो पूरी तरह से माँ बाप के खिलाफ जाए, ओके, और दूसरे ऐसे कि जो एकदम चुपचाप बैठे और जो भी माँ बाप बोल रहे हैं वही करे, सप्रेस्ड और वेरी वेरी रिबेलियस। यस, मैं चाहती हूँ इन दोनों चीजों के बारे में आप सोचें। अगर आप पेरेंट है तो आप फाइंड आउट करें इनमें से कौन से आप हैं। करेक्ट पेरेंटिंग ऑफ कोर्स गाइडेंस की जैसी होती है। जैसे एक गाइड होता है, गाइड क्या करता है? व्हाट डज अ गाइड डू? अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने पीएचडी मास्टर्स किसी ने पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि गाइड क्या करता है, या फिर जनरल पढ़ाई भी की होगी तो आपको पता है। हम जब पढ़ते थे, हमारे टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, हमारे पास गाइड्स होते थे। गाइड्स क्या करते थे? गाइड्स मतलब बुक्स होती थी। उन बुक्स में हम सिर्फ चेक करते थे। क्या चेक करते थे? कि हमारी जो चीजें राइट है कि नहीं है, हमको जो आज टीचर ने सिखाया वो हमको समझा है कि नहीं। हमको अगर कोई स्टेप्स देखने होते मैथ्स के, सम्स के, तो हम उसमें जाते। अगर मास्टर्स करते हो या कोई दूसरी पढ़ाई हम करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, ओके, जो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको डायरेक्टली प्लेट में लाके कोई चीजें नहीं दी जाती। उनको बोला जाता है कि आपका जो टॉपिक है आप चुनो, आप उस पर थीसिस करो, आप उस पर रिसर्च करो, आप लिखो। हम सब रेडी करने के बाद जब गाइड के पास देते तो गाइड उसमें सिर्फ गलतियां निकाल के बोलता है ये चीजें आपको बदलनी है, और फिर हम क्या करते हैं, उसको बदलते हैं। तो द करेक्ट टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज गाइडेंस, फैसिलिटेशन, जो हमें देनी चाहिए। हवेवर अगर दूसरे दो टाइप्स की पेरेंटिंग है तो कभी कभी गाइड होते हुए कोई कोई मौके पे हमको टोटली नर्चरिंग पेरेंट हो जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और कभी कभी एकदम क्रिटिकल तो नहीं बट फर्मनेस, स्ट्रिक्ट पेरेंट होना पड़ता है। ओके, सो मैं चाहती थी कि इस चीज के बारे में मैं ज्यादा बात करूं। लेट्स गो अहेड। हमने देखा है कि बहुत सारा नॉन टॉलरेंस अभी हमारे जनरेशन्स में दिख रहा है। नॉन टॉलरेंस मतलब कोई भी टेंशन वाली चीज हम सह ही नहीं पाते। जो चीज हमने सोची है होनी चाहिए, अगर उससे कोई और चीज हो गई तो हम सह नहीं पाते वो चीजें। ओके, जनरल चीजें बोलती हूँ मैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा फुटबॉल में अच्छा है और माँ बाप ने बोल दिया कि फुटबॉल नहीं खेलो आज, इस बार कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज,
तो बच्चा घर छोड़ के निकल जाता है, इस तरीके की चीजें। कभी अगर बच्चे ठीक से बच्चों का बर्ताव नहीं है, आई विल टेल यू वन सच केस जो मेरे आंखों के सामने हुई थी कि एक बच्चा जो था वो अपनी मम्मी का कुछ सुन नहीं रहा था, काफी टाइम तक सुन नहीं रहा था, और क्योंकि सुन नहीं रहा था मम्मी ने अपने आप पे अपने आप को जला लिया। इतना ज्यादा इंटॉलरेंस। हम उन चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल है ही नहीं। हम सिर्फ हमारे बर्ताव पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारी सोच पे कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम भूल जाते हैं। सो नॉन टॉलरेंस काफी सारा बढ़ गया और उसके वजह से काफी जनरेशन गैप है। लोग एक 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 इंसान से दूसरा इंसान दूर दूर जा रहा है, उसके वजह से जनरेशन गैप काफी सारा आ रहा है। कंपैरिजन भी हो रहा है, कंपटीशन, कंपैरिजन, कितना सारा कंपटीशन, कंपैरिजन। कुछ बच्चे हैं जो बड़ों के साथ जो जो कंपैरिजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बोलते हैं आपने क्या ही कर लिया हमारे लिए, हमारी लाइफ में क्या किया है आपने। उसके मम्मी को देखो, उसके पापा को देखो, देखो उन्होंने कितनी सारी प्रॉपर्टी बनाई है, कितना सारा मटेरियलिस्टिक, कितना सारा बैंक बैलेंस छोड़ा है, आपने क्या ही किया है हमारे लिए। आजकल के बच्चे, हम ये भी सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं, पेरेंट्स तो बोलते ही है पर बच्चे भी बोल रहे हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक जनरेशन गलतियां नहीं कर रहा है, दोनों ही तरीके से हो रही है। ओके, नॉन एक्सेप्टेंस, बहुत सारा एक्सपोजर नहीं है, इम्पोजिंग बिहेवियर, okay, and learning from mistakes. Let's go ahead to the next part of today. Yes, we'll go ahead to the next part of today, where we are talking about understanding. क्या होती है understanding? Understanding. As a counselor, मेरे पास कुछ बहुएं आती है, बोलती है मदर इन लॉ समझती नहीं मुझे, मैं कुछ भी बोलो उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है। कभी कभी कुछ एजेड लोग भी आते हैं मेरे पास, बोलते हैं मेरे बच्ची को समझ में ही नहीं आता मैं क्या बोल रही हूँ। बच्चे बोलते हैं पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। यही तो सारी फसाद है। कोई किसी ने कही हुई कोई भी बात किसी और को समझ में ही नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्यों? Why there is a lack of understanding? चैट बॉक्स में लिखिए, why there is a lack of understanding? क्यों हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे? Lack of empathy, very good. We are not ready to listen, very good, very good. Yes, हमें सुनना ही नहीं है सामने वाला क्या बोल रहा है, हम बस वही सुनना चाह रहे हैं, हम बस वही सुनना चाह रहे हैं जो हमें सुनना है। We are stuck in our own trouble. Yes, हमारे दिमाग में हमारे ही प्रॉब्लम्स जारी है, हम क्यों सुनेंगे किसी और का? एक्सेप्टेंस नहीं है। क्या व्हाट आर यू टॉकिंग? आई डोंट वांट टू लिसन। कुछ भी आई डोंट वांट टू लिसन, सिर्फ सुनने में भी प्रॉब्लम है हमें। Everyone wants to live their lives on their own. Very good. Yes. So ठीक से सुनिए, there is a cycle which we are not doing properly. सबसे पहले हम इसे empathy बोलते हैं, lack of empathy. empathy मतलब क्या? empathy मतलब अपने आप को सामने वाले की जगह पे रख के उसकी लाइफ और उसका एटमॉस्फेयर हमें देखना और उसका जो प्रॉब्लम है उसे सुनना और समझने की कोशिश करना, और फिर जो समझा है वो सामने वाले को बोलना
ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ, मुझे इस इंसान ने समझा ठीक से। अगर आप सिर्फ इतना ही कर लो, सिर्फ सुनो और समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सई है और मैं रिम्पल जी से बात कर रही हूँ, तो जब रिम्पल जी मुझे सुन रही है तो रिम्पल जी ने खुद को सही समझ के मेरी बातें सुननी है। रिम्पल रह के अगर मेरी बातें सुनेगी तो वो सुनेगी जो रिम्पल सुनना चाहती है। ठीक है, इस पे थोड़ा गौर करिए, इस पे डिटेल में आप समझने की कोशिश करिए, ट्राई टू गो इन डिटेल विद इट। ठीक है, अगर आप ठीक से लोगों को सुनोगे और एम्पथाइज करोगे, अपने आप रिस्पेक्ट दोगे उनको, और बिकॉज यू आर गिविंग रिस्पेक्ट यू विल ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट एंड people will be there for you always. This is a very very important part और ये काफी मिसिंग है आजकल। ओके, हमारे घर पे बुजुर्ग है, बीमार है, कुछ प्रॉब्लम्स है उन्हें, हमें उनके पास बैठ के उनको सुनने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर वो जो बोल रहे हैं हमें समझना ही नहीं है क्योंकि हम हमारी लाइफ में बिजी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके वजह से जनरेशन गैप है। दे फील दे आर नॉट अंडरस्टूड। ओके, कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं और खूब कंप्लेन करते हैं पेरेंट्स के बारे में, और रीजन बस इतना ही होता है कि उनका जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स को पता है, उन्होंने वो प्रॉब्लम बोला भी है पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने सुना भी है, पर पेरेंट्स ने वापस आके उनको बोला नहीं कि ओ अच्छा, मुझे समझा तुम्हारा प्रॉब्लम, आई विल लुक इनटू इट। बस इतना ही तो बोलना है, बट इतना भी कोई बोलते नहीं, और उसके वजह से अंडरस्टैंडिंग में काफी सारा गैप। ओके, ब्लेम गेम करते रहते हैं हम लोग सब, ये जो प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में, उसकी वजह से हुई है, इसके वजह से हुई है, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने सब कुछ किया, उसी ने सब कुछ किया। उस ब्लेम गेम में एक दूसरे से जो रिलेशन है उसको खराब कर लेते हैं हम। सारी की सारी सुपरफिशियल लाइफ, हम डीप में कुछ भी नहीं करते, एडुकेट नहीं करते अपने आप को। अगर बच्चे ने कुछ नया ही प्रॉब्लम आपको बताया है तो हम में से कितने वो प्रॉब्लम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं? कितने लोग प्रॉब्लम्स की चीजें पता है? लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन। LGBTQ के बारे में जब मैंने अभी बताया, आप में से कितने लोगों ने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है? प्लीज लीजिए, क्योंकि ये नए चेंजेस है जो अभी लीगल हो रहे हैं हमारे कंट्री में धीरे धीरे। ओके, हमको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, ज्यादा नॉलेज लेनी चाहिए, और क्योंकि हम अपग्रेड नहीं कर रहे, जनरेशन गैप है, क्योंकि हम खुद को एडुकेट नहीं कर रहे, जनरेशन गैप है, क्योंकि हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सुन नहीं रहे हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इन सारी वजहों की वजह से जनरेशन गैप है। और क्योंकि बहुत सिंपल। ओके, सो इसके वजह से ये सब हो रहा है। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक। यस, let's go ahead to the next topic. That we have today, media and technology. We have covered it already, okay, yesterday. So I may not be talking much about this topic क्योंकि हमने कल भी ये कवर किया है, जिसमें हम वर्चुअल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, फेक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक पार्ट है जो मैं बताना चाहूंगी आपको कि थोड़ा सा नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, सो आप कहाँ से नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज गूगल कुछ बता रहा है आप उसको सच मान लेते हो? आपने देखा है उसके पीछे कोई रिसर्च है, कोई थीसिस है, कोई रियलिटी है, कोई साइंटिफिक पेपर है, हाँ कि नहीं है? वो भी हम नहीं देखते हैं। तो जहाँ पे बहुत
इन बहुत डिटेल्ड और कुछ इम्पोर्टेंट आप सर्च कर रहे हो, आप प्लीज चेक करो कि कहाँ से आपके पास ये डिटेल्स आ रहे हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तबीयत ठीक नहीं तो कौन सी गोली लेनी है, हम डायरेक्टली गूगल पे चेक करके कई सारे लोग वो गोलियां ले रहे हैं. बट गूगल को आपकी बॉडी नहीं पता है. सो फॉर सर्टन थिंग्स यू हैव टू गो टू डॉक्टर, नो. तो वो आपको समझ आना चाहिए. ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स वी डू ऑनलाइन, और जहाँ पे ट्रस्ट के इश्यूज काफी सारे हो सकते हैं. और क्योंकि हम बहुत सारा मीडिया टाइम ऑनलाइन, मोबाइल यूसेज ये सब करते हैं, उसके वजह से हम देखते हैं कि काफी सारे अलग जनरेशन भी हमको इमिटेट कर रहा है. okay? काफी सारे लोग इमिटेट कर रहे हैं. और आप देखोगे कि अगर बहुत बार मैंने देखा है कि किसी बच्चे को अगर मोबाइल एडिक्शन हुआ है, और वैसी कोई 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 बच्चा अगर काउंसलिंग के लिए मेरे पास आता है, तो मैं देखती हूँ कि उसके घर पे एवरीवन एल्स इज ऑल्सो डूइंग इट, एल्डर्स आर डूइंग इट, तो फिर बच्चा भी कर रहा है. तो इस तरीके का इमिटेशन हो रहा है बहुत सारे जगहों पे. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड where we are talking about tolerance. But yes, we have covered tolerance to a lot of extent. So let's just move ahead to the next slide after tolerance, where we are talking about communication. We'll move to the next slide after tolerance. Yes, we just spoke about tolerance. Yes, you all can just see the pictures which are there. Yes. We can go towards communication. A very important part. हम सभी चीजें, हमारे आसपास होने वाली सारी चीजें हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है. हमारे रिलेशंस, नॉट ओनली विथ फैमिली, विथ फ्रेंड्स, विथ पीपल इन आवर ऑफिस, विथ पीपल स्टेइंग इन आवर नेबरहुड, सब जगह पे कम्युनिकेशन है. जितना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, जितना क्लियर, क्रिस्प और डिटेल्ड कम्युनिकेशन होगा, उतना ज्यादा गैप कम होते रहेगा, उतना ज्यादा ब्रिजिंग हो जाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इसका मेन रीजन ये कम्युनिकेशन का गैप क्यों है? बिकॉज ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी. बहुत कुछ चीजें वर्चुअल होने की वजह से हम देख रहे हैं. मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी काफी सारा चेंज हो गया है, जहाँ पे ऑनलाइन कम्युनिकेशन, फोन पे, वीडियो कॉल्स पे, इंटरनेट, ईमेल पे, ये सब कुछ हुआ है. टाइम नहीं होने के वजह से कम्युनिकेशन में बड़ा चेंज आपको दिखाई दे रहा है. देयर इज नो टाइम. उसके वजह से, क्योंकि लाइफ इज बिकम वेरी फास्ट, पेशेंस भी बहुत कम है. उसके वजह से बहुत ज्यादा बात नहीं करना है, छोटी छोटी थोड़े से वर्ड्स में बात करने की कोशिश हमें करनी है. सो मोस्ट ऑफ अस डोंट लिसन, वी बिकम डिफेंसिव. पूरी तरह से सुनने से पहले ही, जो चीजें सामने वाला बोल रहा है उसको पूरा सुनने से पहले ही हम अज्यूम कर लेते, सोच लेते कि शायद ये बोल रहा है, और हम डिफेंसिव हो जाते हैं. कई बार शब्दों से सामने वाले को परेशान कर देते हैं. इनसिक्योरिटी महसूस होती है इन सारी चीजों की वजह से. क्वालिटी टाइम कंप्लीटली मिसिंग है. ओके, सो कम्युनिकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे बतानी है आपको. आप देखते हो कि कम्युनिकेशन जब होता है तो हमें ऐसे लगता है कि सिर्फ वर्ड्स इम्पॉर्टेंट है. तो इट्स नॉट ओनली वर्ड्स, इट इज योर फेशियल जेस्चर्स, योर हैंड जेस्चर्स. ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली, लाइक आपकी बॉडी एनर्जी कितनी हाई है, कितनी लो है, आप कैसे चल रहे हो, कैसे बैठे हो. उसके अलावा आपका वॉइस,
जो आप बात कर रहे हो वो ऊंची आवाज में कर रहे हो, मीडियम आवाज में कर रहे हो, हाई पिच है, लो पिच है, टोन कैसी है, रूडली बात कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। आप कैसे सुन रहे हो ये मायने रखता है। आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो ये सारी चीजें रिस्पॉन्ड करने से पहले। और फिर वर्ड्स के बारे में एक बहुत अच्छी कविता है जो मराठी में है, और इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड्स। आई थिंक वी कैन रन दैट वीडियो। रिम्पल जी, आई थिंक वी कैन रन दैट वीडियो। मैं चाहती हूँ आप सब ये ठीक से सुने। We will definitely be putting this video in the group also for you all. We will just listen to this video and try and understand each and every word. It is a poem written by Tukaram ji. He was a saint who was born in Pune, Dehu in 15th century. And 15th century में उन्होंने लिखी हुई चीज अभी भी बहुत aptly यूज कर सकते हैं हम। In the 16th century. It is a Marathi abhang written by Sant Tukaram in the 16th century. It talks about words, how should words be used, and what all should we do to be careful with our words. So it starts as follows. घासावा शब्द, तासावा शब्द, तोलावा शब्द बोलण्यापूर्वी. It means one should polish their words, cut painful words away, should weigh their words in mind before speaking. शब्द हेची कातर, शब्द सुई दोरा, बेतावे शब्द शास्त्रधारे. Words are scissors that can cut hearts, relationship, and words are like thread and needle that can heal others. बोलावे मोजके, नेमके, खमंग खमके, ठेवावे भान देश काळ पात्राचे. One should talk little, to the point, keep in mind the country, community, family, etc., time and your identity while speaking. बोलावे बरे, बोलावे खरे, कोणाच्याही मनावर पाडू नये चरे. Speak good, speak the truth, don't hurt people. कोणाचेही वर्म, व्यंग आणि भिंग, जात पात धर्म काढूच नाही. Do not talk about anyone's shortcomings, religions, caste, etc. थोडक्यात समजणे, थोडक्यात समजावणे, मुद्देसूद बोलणे ही संवाद कला. Explain in short and try to understand in short. Talking objectively is an art. शब्दांमध्ये झळकावी ज्ञान कर्म भक्ती, स्वानुभवातून जन्मावा प्रत्येक शब्द. Your words should represent your knowledge, work and your devotion. Experience should be the mother of your words. शब्दांमुळे दंगल, शब्दांमुळे मंगल, शब्दांचे हे जंगल जागृत राहावं. Words can cause riots and words can result in celebration. There is a jungle of words and one should be alert about words. This is a Marathi abhang. Yes. So this is a beautiful abhang which tells us किस तरीके से हमें शब्द इस्तेमाल करने हैं, कैसे शब्द सोच समझ के कम से कम, टू द पॉइंट, किसी को हर्ट नहीं करते हुए, किसी के डिफरेंस नहीं निकालते हुए, किसी को बुरा फीलिंग नहीं आना चाहिए. ओके, yes, it is very aptly explained. I think with this we should wait here, because if I keep talking on this and there are a few more pointers which are left about the reasons, I think we can cover a few tomorrow. Today we have covered few. मैं चाहती हूँ कि आप yes मैं चाहती हूँ कि yes
Hello? Yes, I can Hello? hear you speaking. Yes, please speak. Who's speaking? Okay. मैं चाहती हूँ कि आप सब जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, जो रीजंस डिस्कस किए, उनमें से कौन से रीजंस आपकी लाइफ में हैं, ओके, उसके बारे में आप सोचिए और आप वो लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि हम लास्ट दिन पे इसके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे. सो वी हैव टू वर्क विद द सॉल्यूशंस. यस निखिल जी, what you have written in the chat box is right. I can see it. Yes. So words are worse than swords and anything else. Yes, it was a beautiful. Madam, can approach. I speak? Can I speak? I think first I'll have to hand this Madam, can over I speak? to. Yes, 1 minute, sir. I'll have to hand it over to Buaji first, because she'll be concluding it, and then later on there'll be a question answer time. Yes, Buaji, I'm handing it over to you. So Sai has given a beautiful information on the understanding of the generation gap. It is also very spiritually said, that without knowledge you cannot go ahead. So आज जो भी साई ने हमको बताया 2 दिन के अंदर, whatever she has told us, this is the knowledge that she has imparted, which is very, very important. If we really want to finish off the gap between the generation, we need the knowledge. So that is very, very important. In spiritually we say that this is ज्ञान, यही ज्ञान है और यही ज्ञान हमारा गुरु है. फिर जहां पे भी ये ज्ञान बैठ जाएगा, is definitely going to bring a positive result. So humble request to all of you, please be very focused, listen to it, go and listen, बार-बार video को देखो, सुनो, understand and apply it. Just apply it. So knowledge is the first and foremost thing in spirituality also. The next is, if you have the knowledge, the knowledge says that you have to be a very good listener. क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम नहीं है, ना बच्चों के पास ना बड़ों के पास. अगर बच्चे आके कहेंगे मॉम आई वांट समथिंग, प्लीज कीप क्वाइट, आई एम ऑन द फोन. और अगर मम्मी कहती है तो बच्चा कहता है आई डोंट हैव टाइम, आई एम आउट ऑन द फील्ड. सो दे आर नॉट गुड लिसनर्स. So this is a very important part in spirituality also. They say that this is the second part which is very important if you want to evolve. Agar ko knowledge hai and you're a good listener, then your communication will be very good. Your communication will be very good. Because communication ke liye you have to be a very good listener. And to be a very good listener, you have to have the knowledge also. You must have the knowledge also. So spirituality, both of things are very, very important for us, that if we really want to finish up the gap among the generation, listen to all these sessions, be very attentive to it, and does not listen, apply it. Because yesterday the question came that how do we change? There are all around people, and how do we bring in the change? To bring in the change, I told you yesterday also, you have to change. So all of you sitting here, maybe you are 60 to 70 people, please apply it. Practice it. Take your own responsibility. From today on, learn to be very good listeners. And whatever you are hearing, never bring in a communication also gap. Not only generation gap, also a communication gap. If you build up this gap in communication also, you are going to be in a soup, because the generation gap comes because of the communication gap also. And why does the communication gap come? Because there is no knowledge. We have not elevated ourselves, we have not educated ourselves. Let it be the children or let it be the elders, but we have not educated. So that is why my humble request, these sessions are very, very important. It will not only bring peace into your own family, you are going to evolve spiritually also. Spiritually doesn't mean taking a mala and doing Ram Ram Vaheguru Vaheguru. No, spiritually is not that. When the two or three generations finish up the gap, means somewhere they're hitting the spirituality in life.
somewhere, because when you finish up the gap in the spirit, in your generation, you build up tolerance, you build up the forgiving, you become a good listener, you learn to have empathy. And what are all these? These are the positive energies. This is spirituality also. So my humble request to all of you, I will not take much time. I would like to announce one more which Jeevan Jaj has come up with. Is a weekend Punjabi and Gurbani course, 31 sessions. And the batch starts on 2nd September. And the timing is 7:30 to 9 p.m. Very good for the overseas. People who are working will have the time to take your weekend, that is the day Saturday and Sunday. And the last date for enrolling is 31st August. Age criteria is 9 years and above. So please sign up and register now. Avail this opportunity. Do not bring in any excuses. The time is ripe. Need of the hour. Ma Boli Sikho. Very, very important. Whatever you're going to learn in Jeevan Jaj is just not learning the words. It will make you travel into a journey of spirituality, a very new way of imparting this knowledge of Gurbani, of Punjabi to you people. So please, please, my humble request, avail this opportunity. So now I think we can just wind up with a question and answers. Anyone having any doubts or any question, can please put it up. If you want, you can put up in the chat box also. So yes, Sai, you can continue now with the questions. Yes. We have Ranjit Kaurji who's asking a question. Yes, unmute beta. Please go ahead. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुआ जी. Fateh bacha. Good evening, ma'am. Ma'am, my question is for parents like us. हम लोग के बच्चे टीनेज में चल रहे हैं and हमारे in-laws जो भी उनसे रिलेटेड बोलना चाहते हैं या उनको जो भी बोलना चाहते हैं, it goes through us. Okay, so they tell us कि ऐसे समझाओ, वैसे समझाओ या whatever they feel like. बच्चे हैं वो आके हमको बोलते हैं कि हमको ये चीज नहीं अच्छी लग रही है, आप जाके ग्रैंड पेरेंट्स को ये चीज बताओ, वो चीज बताओ. So it has become like we have become the mayonnaise in the sandwich, ma'am. I can understand what the grandparents want to say. I can understand what my kids want to say. But how do I go about it? That's very difficult, you know. अगर मैं उनके इसमें बोलती हूँ तो इधर प्रॉब्लम है, अगर इधर बोलती हूँ तो उधर प्रॉब्लम है. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर पेरेंट्स लाइक अस, मैम, जो अभी जिनके बच्चे 18-19 इयर्स के हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. आई एम ऑन अ वेरी सीरियस नोट टेलिंग यू, मैम, इतना गंदा हाल है अभी हम लोगों का, क्योंकि हम दोनों तरफ से सुनते हैं. एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, मैम, कि वी कैन अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम. हमको पता है कि वो भी सही बोल रहे हैं और वो भी सही बोल रहे हैं. So how do we go about it? Taking a stand is very difficult, ma'am. Yes. See, according to my experience and my understanding, I'm talking to you. And maybe Buaji can add later. Definitely her wisdom she can add. But what happens is, as we are growing up and we grow up and we have our own children, some control is still in our parents' hand. Okay, and at that time we feel that हमें तो बच्चे क्या बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं वो भी समझ में आ रहा है, पर इन दोनों का हम कैसे कम्युनिकेट कैसे करें कि आपका ये चीज सही है, आपका ये चीज सही है, आपको इधर बदलना है और आपको इधर बदलना है, ये कैसे करें? इसके लिए बहुत ज्यादा हमको करेज चाहिए. वी नीड करेज. We also need to talk about uncomfortable things with a lot of respect and empathy. हमें लगता है कि जब हम
कोई बड़ों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं तो उनको बुरा लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर हम ठीक अच्छी तरीके से वो बात समझाए तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए बुरा लगे और कुछ दिनों बाद वो समझ जाए कि आपने क्या बोला है। बट यू हैव टू लर्न टू टॉक विथ योर एल्डर्स एज वेल एज विथ योर चिल्ड्रन। अनकंफर्टेबल चीज बात करने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए, आपको सोचना चाहिए, शब्द चुनने चाहिए, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं वो सोचना चाहिए, करके आप वो बात करिए। और फिर दोनों को आमने सामने बिठा के बात करना और भी ज्यादा करेजियस चीज है। बट आप पहले ये चीजें स्टार्ट करिए कि जो आप अनकंफर्टेबल हो, आपको जहां पे लग रहा है कि ये चीज गलत है, आपको बोलना सीखो, बिना इंसल्ट किए, बिना आपका टोन चेंज किए, बिना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है उसकी। सो अग्री टू डिसअग्री एक पॉइंट है। दूसरा है टू बी एबल टू स्पीक about uncomfortable things with empathy and with courage and with firmness without insulting. सोचो इसके बारे में। Ma'am, but there are situations where we find कि both the parties are correct. Yes. So in which direction should we walk? किसके साथ में वैसी बात की जाए, किसको समझाया जाए? Okay. आप सिर्फ इतना ही बोल दीजिए दोनों को कि आपकी भी बात सही है, आपकी भी बात सही है, लेकिन किसी एक को तो पहल करके किसी एक को तो आगे जाना पड़ेगा। दोनों ही चीज एक साथ नहीं हो सकती है ना। ये है ना आपका कहना कि दोनों की चीजें करेक्ट है बट दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती। सो देन लेट देम चूज व्हाट दे वांट टू चूज, बट यू टेल बोथ ऑफ देम व्हाट यू फील, एंड even if any one of you goes ahead with your decision, we are with you. That is what you have to convey. Yes, it is difficult. Yes, I agree, it is difficult, but unless you start, let me tell you, if you start, this is my personal experience, you will start feeling freedom of being who you are, freedom that everyone in your family knows who you are truly. Yes, living a genuine life is very very important. तो कोई है ना बोझ नहीं रहता है, आप बोलते जाते हो, आपको जो फील हो रहा है आप वो बोलते जा रहे हो। मैं बहुत जगह पे नहीं बोल सकते हैं, बहुत जगह पे वो मन में ही रहता है और आप उसी चीज को लेके यू कांट स्लीप आल्सो। आपको बहुत रेस्टलेसनेस होती है बिकॉज यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हिच वे यू वांट टू रियली वॉक। करेक्ट वो बहुत डिफिकल्ट होता है ना। बट उससे भी ज्यादा जिस दिन पहली बार आप बोलोगे ना आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका जो फल मिलेगा ना आपको 7-8 दिन बाद जो शांति मिलेगी, उस वक्त आपको उथल पुथल होगा पूरा मन में, लेकिन बाद में जो आपको शांति मिलेगी, आपको करेज आ जाएगा नेक्स्ट टाइम से वो फॉलो करने के लिए। सो यू ट्राई इट फॉर वंस, यू ट्राई इट एंड देन यू विल सी that you can try it often. Sure, ma'am. Thank you. Yes. Start from parents and tell them. Yes, Manas Tiwari is talking on the chat for you. Manas, you can come onto the From screen. a younger Manas, generation. Get it? Yeah, he's from the Nevan. Manas, can you just come up? No, ma'am. Actually, I cannot turn on my camera because I'm in this situation. So I just can speak about it. Like, Yes, ma'am, the question that like you were just asking to madam. So the things many times I have code also. So in these circumstances, what you have to do first, you have to talk with the parents, like who is the elder there. You should just inform them like why child is thinking like इस तरीके से वो क्यों सोच रहे हैं, उनके कंडीशन को आप समझो। जाहिर सी बात है बच्चा नहीं समझ पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है उन जर्नी से। तो बच्चे को पेरेंट्स को समझने के टाइम जाएगा, बट पेरेंट्स उनको समझ सकते हैं या फिर जो भी एल्डर पर्सन है वो उनको समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट आप उनको बोलिए कि आप उस चिल्ड्रन के जो भी मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर है या फिर जिस चीज से वो सफर कर रहा है पहले उसे वो समझे, देन आप पीसली, जैसे कि मैम ने इन्फॉर्म किया कि मतलब आप बच्चे के साथ बैठिए पीसली और उनके जो भी सिचुएशन उनको समझिए और उनको आप असिस्ट करिए कि दादाजी हैं या फिर जो उनके फादर है वो इस तरीके से क्यों सोच रहे हैं। तो आप ऐसे दोनों के साथ पीसली बात करके जो भी प्रॉब्लम है इसको आप आराम से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू। Okay, thank you, Manas, thank you very much.
Anji, Ranjit, are you satisfied, bacha, or still wondering? Sleepless nights. Ma'am, until I start, working on it, it's not going to happen. Like ma'am said, na, आपको initiate once. करना पड़ेगा. आपको एक बार शुरुआत करनी पड़ेगी. So that one time is really difficult. Taking the first step is the most difficult thing. See what happens actually when हम कहते हैं ना बच्चे गलत कर रहे हैं तो भी ओके बच्चे हैं, पर जब हम कहते हैं ना हमारे बड़े गलत है ना तो हमको थोड़ा सा डर लगता है बोलते हैं. Maybe they are wrong. We say that no one is right and no one is wrong. Everyone has the way of thinking. That is why we come up to this level. No one is right and no one is wrong. Everyone has their own belief system. But when we find universally some elders are going wrong, we are scared to tell them. We are scared to tell them. But we say we must take a stand. The stand, how, when, how, what way, that is very important. You must not hurt them. You must be very compassionate. You have to give example of the world. You have to make stories with them that this is what's happening outside. Convince them. It is not easy to break the belief system of the elders. It's not easy, but you take a stand. I'm sure your compassion, your understanding, your own stability, अंदर तुसी आप एक चीज वैसे चल पे हो कि नहीं हुन असी एक चीज गैप खत्म करनी है. So you have a very good intent. You have a lot of compassion. You have your own knowledge, the tools. And when you go to the elders, they will listen. ये सारे लोगों दी खाली दिमाग विच है. We do not know how to proceed because we are scared. Take a step. Second thing, you must have healthy discussions in the house. All the three generations should sit and have healthy discussions. Just start a discussion कि बार ऐसे हो रहा है. You can connect. The children will voice out. The elders will have a healthy discussion. If you really want that gap to be covered up. जी Yes. बच्चे नहीं बैठना चाहते. They don't want to sit. कि बच्चा what happened now, as you said, कि भाई बच्चे नहीं बैठना चाहते. What energy are you giving? Impossible. You're giving an energy of impossible. It is going to be impossible, not going to be possible at all. Check your own energy. Check your own energy before you take this mission of getting the gap removed between the grandparents and the grandchildren. Please check your energy. That's very, very important. So say everything is possible. So Ranjit doesn't matter. मेरी गलती. I was sending negative energy. That's right. Yes, मैं absolutely. ही इस तरह इनिशिएटिव में गलत कर रही हूँ. एकदम सही कर Yes. रही हूँ. Yes, so check your energy before you start any mission you take. This is also a mission for us when we have to go to the elders. So check your Yes. energy, check your intent. Okay. Thank you, God Fuaji. bless. Thank you. Yes, Mr. Rajman Singh has a question now. You can हाँ unmute जी. and talk. Unmute and talk, sir. मॅडम, आम्ही संतांचे अभंग वाचतो पण प्रत्यक्षात त्याचा आम्ही उपयोग करत नाही. असं का आहे? काय आम्हाला संतांवर आणि गुरुवावर विश्वास राहिला नहीं? अभी आपने बोला था कि गूगल पे विश्वास है. इसका मतलब है हम गुरु वाले नहीं रहे, गूगल वाले हो गए. आप देखो गूगल में तुम सर्च करो, तुमको अभंग मिलेंगे, तुमको गुरबानी मिलेगी, तुमको सब सारे कुछ सब कुछ मिलेगा. गूगल तो बताता है पर हम नहीं फॉलो करते. ऐसा क्यों है? क्या You रीजन have है? to choose. हाँ, क्या सच है क्या? I meant to say कि हाँ. बहुत सारी चीजें हैं गूगल पे, पर आप सोच समझ के इस्तेमाल करिए कि कौन सी हाँ. चीजें उसको ढंग से जब यूज करने से पहले आप सोचिए कि ये सही है या नहीं. फाइंड आउट कीजिए, उसका एविडेंस देखिए, लॉजिकली चेक करिए, साइंटिफिकली चेक करिए जो भी चीजें आप देख रहे हो. दैट इज व्हाट आई मेंट. हाँ, तो डेफिनेटली कुछ चीजें आता मी सही होंगी, पाहिलं. गलती भी होगी. हाँ हाँ, मैंने देखा है कई यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स है, इलेक्टेड मेंबर्स है, ये अभंग को उसके एडवर्टाइज में देते हैं क्या? मगर उस पर खाली
शोबाजी करते हैं, वो तो इस्तेमाल तो करते ही नहीं, पर डेली कोई ना कोई अभंग या कोई विचार आएगी। हाँ जी, मतलब ये फिर हम झूठी दुनिया में रह रहे हैं। Yes, yes, correct. इसका रीजन क्या है? मीडिया है, इज मीडिया रिस्पॉन्सिबल? और या फिर उनको ऐसा लगा कि एक झूठ 100 बार बोले तो सामने वाले को सच लगता है, ये भी है ना। तुम बार बार झूठ बोलो, सामने वाले को कभी ना कभी वो सच लगेगा। इसके लिए बोलते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते, सच को याद करना पड़ता नहीं। तो ये क्या हो तो गया हम है, सभी को एक हमारा आदत सब होती है मन सर कि मैला हो गया सबका। हम सभी को एक आदत होती है कि हमें जब इंफॉर्मेशन, जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना, तभी हम उस चीज को ढूंढते हैं। ओके, और जो हमारे आसपास पड़ी होती है चीजें, उनकी हमें जरूरत नहीं होती तो हम उनको बहुत सीरियसली नहीं लेते। मगर वो तो पायलअप होता है ना, वो हाँ, सब जो अपने गलत सोच है वो पायलअप हो जाते हैं ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट बाद में फिर वो आदत से बन जाएगी ना। तो करेक्ट उसको करेक्ट। रेमेडी क्या है? उसको रेमेडी क्या है? Take knowledge. यस, If it is piling up, if it is just piling up, so who's to be blamed? इससे We. उससे अगर मेरे इतना अंदर वो जोड़ना pile बस। up हो रहा है, तो I am responsible for it. So if I want to remove the piles, what have I to do? I have to take the education. I have to educate myself. I have to elevate myself. Then only I can remove it. Now that's my choice. Do I still want to pile it up or do I want to finish it up? उत्थे भी मेरी अपनी choice हैगी। So if you want to finish up, you'll have to take knowledge, नहीं educate yourself. नहीं, जीवन जीवन जांचना ज्वाइन होता साढ़े अंदर पायलअप नहीं होया। मैं आम इन जनरल कह रहा। हाँ, तुसी Even सानू general भी हो सिखाता गए। असि पायलअप नहीं कर सकते। नहीं, पायलअप नहीं करते। Even in general, आज ਅਸੀਂ पायलअप क्यों नहीं कर रहे हैं? इस करके पायलअप नहीं क्यों? क्योंकि सारे को knowledge है। We are working daily, on daily basis. We are working. We are Yes. daily taking class. That is why we are not piling up. But if we talk on general, on the mass, if they are piling up, is a humble request to all of them that also you also have to educate yourself. You have to educate yourself. As counselors को कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। वो कहते हैं जी हम पागल थोड़ी हैं। But we are educating them. No, you have to go. Why? Because counselors are going to go deep into your core and make you vomit out everything. जो असली parents नहीं कर पा रहे हैं. So we have to educate these people and all. This is the importance of the counselors. So then again, there's education. That means education is one of the biggest tools. In any field you go, education is the biggest tool. What do you say, Sai? yes, yes, absolutely right, Buaji. Absolutely right. And when you see the similar patterns happening in your life, the patterns are not changing. That means there is something for you to work on. You have Yes. to wait, stop, introspect, find out, Madam, take help, whatever. Madam, one more question. Finish here. One more short question. A very short question, Rajwan. Shall I Very ask? short question. Yes, Very because short, There very is short. one more Huh? because there is someone No, who's no, asking. no. okay. Very short question. I know I want Yes. to give a short because Buaji has Yes. directed me to give a Yes, yes. यही बंदा पंगा लेंदा वा। अच्छा मैडम, तुसी जेडी स्लाइड दिखाई सीगी पहला, ओहो लेडी ड्रेसअप कर दी है, कंपेयर कर दी है, पर मनु एक दसो एजी स्लाइड या टीवी सिर्फ लेडीज ही क्यों दिखाते हैं, कि बंदे नहीं करते इस तरह? हाँ जी, मेल देखो, मैंने को आज थे मैं कोई आया देखे नहीं, मेल देखो तो जो देख slide- कंपेयर वगैरह। हाँ जी, देखो जो slides में दिखाया है ना, they showed the woman because woman does the housework. It is the ladies who have all the show of clothes. It is the mother who's the head of the thing. She is controlling the woman. That is why they show the lady. There's nothing about a man and a woman. It's just showing how a generation
controls the other generation, but nothing else. Nothing to do with a male or female. उनसे It is ऐसे just showing ऐसे the बंदे control. बंदे भी तो जो है बंदे भी जो है चंगी तरह ड्रेस कर दिया, जूते शाइन कर दे चंगी तरह, ताकि जूते चमको हों तो हो Rajwan, टैंका next वाला time भी I'll take इंप्रेस हो जाता, next time I will फलाना take भी a male. इंप्रेस। Rajwant, I will take next time a male. अच्छा अच्छा This time I took a female because ओके there are ओके more ओके females. Next time Yeah, I'll take a there male. is साडे साडे भी कान खिंचो ना तुसी। अच्छा ओके थैंक I यू। think, you know, Thank you. always Thank you. males are under the control of females. Because a control of Yes. females. there is Animeshwar Kaurji. She wants to share her experience. Yes, yes, yes. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੈਣ ਜੀ ਜੀ, ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਪੈਰਾਲਿਟਿਕ ਹਾਂ। Doesn't matter. We can understand, Manji. I can understand. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਗੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਲੇਡੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਹਾਲੇ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਾਏ ਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ, ਔਰ ਲੰਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈ ਔਰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮੰਨੋ, ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫ੍ਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਆਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੜ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿ ਦੋ
सब्जी ते बड़ी स्वाद सी, पर नमक तू थोड़ा ज्यादा पा ले, अगली बारी ध्यान रखी। इन्ने ची हंस के कह दो ते कितना अच्छा माहौल हो गया। निक्कियां निक्कियां गल्लां ने जेड़ियां ना, मतलब सप्प भी मर जाए लाठी भी ना टुटे, कहावत है ना, प्यार दे नाल कहो। Very good. Thank you प्यार so नाल much. Thank you so much. Thank you so much, Benji. बस ये Your कहना input was चाहती थी। excellent. Very good. So now I think all the youngsters can understand, all the elders. So how you can make yourself comfortable, remove the generation gap. Beautiful, beautiful, Benji. Love you, love you. Beautiful. Thank So you. now- Thank you very So now I think it's now 8:15. We should wind up because again tomorrow we have to meet. So buck up Yes. tomorrow again. And I want all your smiling faces. Please come onto the screen. Please come onto the screen, all of you. Yes, all Yes, of you come onto the screen. Yes, yes, all onto the screen. So Rimple is going to take your photograph. Please all come onto the screen. Yes, yes, that's good. Yes, Indu, that's good. Yes, Bubbly, yes. All of you come up, come up, come up, come up. Rimple, come on. Yes. Darinder, come on. I want all of you. Pictures are going to be clicked. Yes. All of you, why aren't you all getting Harpreet and all? Why all the counselors are hiding for? Come on. Come on, all of you. Yes, so. Yes, seeing an every smile. So I think we should wind up. And now is a good night. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Back tomorrow at 7 o'clock sharp with the same link.